जी धन्यवाद प्रणाम और हरे कृष्णा दाशे प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु start Prabhu please. Yeah, we welcome all the devotees to this wonderful Bhagavad Sudha Karikram of Avatari Desh, and such a nice occasion it is, and such a nice opportunity to hear Srimad Bhagavatam. And to begin with, we'll have a small kirtan from Krishna Kinkar Prabhu. So I request Krishna Kinkar Prabhu to join and start the Sankirtan, please. Hari Bol. Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yes, Prabhuji, you are okay. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Gopinath Radha, Gopinath Radhe Radhe. Jaya Radha Gopinath Radha, Gopinath Radhe. Jaya Radha Shyam Sundar Radha,
श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे राधे जय राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौर चंद्र गौर निताय 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय Hare Krishna. की जय Hare Krishna. His Grace Sam Prabhuji is there, so I request His Grace Swami Prabhu to welcome
him and all the devotees. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के भागवतम सुधा सत्र में पुनः स्वागत है। आज भागवतम सुधा का चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों से हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी बहुत ही मधुर कथा कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने गजेंद्र मुख की कथा करी, दूसरे दिन समुद्र मंथन की कथा करी, तीसरे दिन कल हमने भगवान के मोहिनी रूप की कथा सुनी, और आज हम हिज ग्रेस प्रभु जी के मुख से वामन देव के अवतार की लीला का आस्वादन करेंगे। और अब हम सभी भक्त लोग मिलकर प्रेम से सार्वभौम प्रभु जी का 3 बारी हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम, हरे राम हरे 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 राम हरे राम। इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु की जय। Yeah. श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय अवतारी देश भक्त वृंद, आप सबका श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। सत्संग में कल हमने देव असुर संग्राम के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को जब अमृत पिला लिया और असुर वंचित रह गए तो कलह हुआ, देव असुर संग्राम हुआ। देवता अमृत पीने के बाद विजयी हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित नारद ने युद्ध को समाप्त कराया। बलि महाराज जो प्राय प्राणहीन हो चुके थे, शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से पुनः जीवित हो गए। और फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्वजीत यज्ञ कराया और बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और स्वर्ग के देवता उनके गुरुदेव बृहस्पति के कहने के ऊपर स्वर्ग को छोड़ के चले गए। बलि महाराज स्वर्ग के राज का अधिपति हो गया। तो भृगुवंशी ब्राह्मण ने कहा कि अब आप जो इंद्र आसन पे बैठे हैं ये अवैध है। इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। तो आइए नर्मदा के किनारे आपको 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का अनुष्ठान करते हैं। और यह यज्ञ शुरू हो गई। दूसरे तरफ देवता अपना राजपाट छोड़ के अदृश्य रूप से कहीं छुपे हुए थे। तो देवताओं की माता आदिति जो देवलोक में ही रहती है, वो अपने घर में चिंतित बैठी थी। कश्यप जी जो ध्यान में गए थे, ध्यान में बैठे हुए थे कहीं, वो वापस जब अपने आश्रम में आए तो अपनी पत्नी आदिति को चिंता में देखा। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं वो एक सभी गृहस्थी को घर के अंदर क्या करना चाहिए। 10 पहले श्लोकों में 16वें अध्याय में कश्यप जी के आदिति से प्रश्न है। फिर आदिति को कश्यप जी उपदेश करते हैं आध्यात्मिक, परंतु पुत्र मोह के कारण आदिति अपने पुत्रों का हित चाहती है। तो कश्यप जी उनको पयोव्रत का उपदेश है। श्री शुकवाच
सुखदेव महाराज कहते एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता आदिति तदा, अपने पुत्रों को पदहीन और ऐश्वर्य से नष्ट देखकर देव माता आदिति हृदय त्रिविश्व दैत्याः प्रत्ययः अनाथव, अनाथ की समान अब देव माता अपने आश्रम में बैठी हुई है। तो एकदा कशिप तस्य आश्रमे भगवान आगत, कशिप को भगवान की संज्ञा दी गई है। ये मरीचि का पुत्र प्रजापति है, इसने बहुत ज्यादा, जिसके गोत्र का पता नहीं होता है ना उसको कहते कश्यप गोत्र उत्पन्न। सभी कश्यप के संतान प्राय है, बहुत बड़ा प्रजापति है। वो अपने आश्रम में कुछ समय के बाद आया। निरानंदनम, आनंद में नहीं देखा अपनी पत्नी को। वैसे पति परदेश से आए तो पत्नी को उत्साह से उसका चेहरा खिल जाना चाहिए, लेकिन आदित्य माता का निरुत्सवम, कोई उत्साह नहीं देखा। निरानंदम, आनंद नहीं देखा। समाधेर वितश्चिरात, बहुत समय के समाधि के बाद वापस घर आए थे। प्रचार पे जाते थे, समाधि पे जाते थे। ये कैप्सियन सी है, कश्यप जी तो वो तो रशिया की तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ रहते थे, हिमालय में। उसके बाद क्या, सपत्नीम दीन वंदना वदनाम, उसने अपनी पत्नी का देखा कि मुख बहुत दीन हो गया है, दुखी, दीन दुखी हो गया है। परिग्रह सभाजितो यदा अन्यायम इदम आहा परीक्षित महाराज कारण है उस विषय में पूछना शुरू किया। पहले कहते अप्य अभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोक अधुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यो दंडानुवर्तन। अपने पत्नी को हे भद्रे, ये शुभे, ये भाग्यशालिनी, ऐसा क्या अभद्र हो गया है कि आप चिंता में दिख रही हो? क्या धर्म के विषय में, ब्राह्मणों की पूजा के विषय में, और सामान्य लोग जो हैं उनको तो पता नहीं है, लेकिन हमको तो अपने धर्म का पता है। तो आपने धर्म का पालन तो ठीक किया है। तो अब प्रश्न पूछे, अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृह मेधिनी, हे गृह मेधिनी, अपनी पत्नी को गृह मेधिनी कहते हैं। इसका मतलब के पुत्रों में अभी तक आसक्त है, घर गृहस्थी में आसक्त है। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगो अपि, गृहस्थी के घर में केवल काम नहीं होना चाहिए, भोग नहीं होना चाहिए। पहले धर्म होना चाहिए, फिर अर्थ होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, फिर काम होइए, और मुक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हो गया, अपने घर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अपि वा अतिथो अभवित, कोई अतिथि आया, कोई मेहमान आया। कुटुंब आसक्त्या, कुटुंब में आसक्ति के कारण आप उसका सम्मान नहीं कर पाई। ग्रहात अपूजिता यथा, अपने घर से बिना पूजित होके, बिना आसन के, बिना जल के, बिना भोजन के कोई चला तो नहीं गया। प्रत्युत्थाने क्वाचित, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि अतिथि सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि ग्रस्तों का अतिथि सत्कार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने पहली एक अपने शिष्य को विवाह का संस्कार संपन्न कराया। फिर उन्होंने पूछा हमारा धर्म क्या है? बोला गृहस्थी का धर्म है भोजन करने से पहले दरवाजे पे आवाज लगाए कोई भूखा है क्या, उसको भोजन करा के फिर खाए। तो ये गृहस्थी का अतिथि सत्कार का कार्य। वो पूछ रहे आपने ऐसे तो नहीं किया। गृहेषु अपितेषु अतिथ्य हो मां रिचिता सलीलय अपि यदि निर्यांति निर्णुम राजा गृहोत्तमम। अब एक बात कह रहे सिद्धांत, जिस घर में अतिथि का सत्कार न हो, जल आदि का न पूछा जाए, वो घर नहीं है, वो सियारों का बिल है। जैसे सांप का बिल होता है, चूहों का बिल होता है, ऐसे बड़ा बिल होता है जिसमें वो गीदड़ रहते हैं। तो ये ऐसा घर है जिसमें अतिथि का सत्कार नहीं है, तो ऐसा घर है। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं। अपि अगम्यस्तु वेलायाम न होता हविषातु, ऐसा तो नहीं है समय के ऊपर अग्निहोत्र यज्ञ नहीं किया।
देव पूजन नहीं किया, तब यह उद्विगन धिया भद्रे प्रोषिते मई क्रचित। ऐसे तो कभी तुमसे नहीं हुआ कि आपने अग्नि में आहुति नहीं डाली हो, दिया नहीं किया हो, पूजा नहीं की हो घर में। इसका मतलब त्रिकाल संध्या घर में होनी चाहिए। और ऐसा काम करने से लाभ क्या होता? किसका? दो चीजों का, ब्राह्मण और लिखा अग्नि और ब्राह्मण। यत पूजा काम दुग्धाम, सब इच्छा पूरी करने वाले हैं ये। कौन? याति लोकान ग्रहान्विता ब्रह्मणो अग्निश्चैव विष्णु सर्वदेवात्मनो मुख। अग्नि भगवान विष्णु का मुख है और ब्राह्मण भगवान विष्णु का मुख है। जो इनको आदर के साथ अग्नि में आहुति डाल के घी की स्वाहा बोलता है और ब्राह्मण को बड़े प्रेम से भोजन कराता है, तो फिर उसकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के मुख हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्राह्मण तो भगवान श्री विष्णु के लिए अपने यजमानों का दिया हुआ प्रसाद पाता है, लेकिन वो प्रसाद पाने के बाद अगर प्रचार नहीं करे तो प्रसाद खाने का अधिकार नहीं। प्रचार भी करना चाहिए। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मण और अग्नि के मुख से भगवान ही सब कुछ ग्रहण करते हैं। जयपुर का महाराज बहुत सुंदर यज्ञ निरंतर कराया करता था। बड़े अच्छे अग्निहोत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। रोज खीर, पिस्ता बादाम डल के, केसर डल के बनती थी 2-2.5 किलो, और अग्नि में स्वाहा हविष्य होती थी। ब्राह्मणों को सुगंध आए और कहे कि ये सब अग्नि में जाती है, हमने कभी किसको चखा भी नहीं है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उनने 2-4 चम्मच स्वाहा किए और बाकी आपस में मिल बैठ के खाया, प्रसाद पा लिया। रात को भगवान स्वप्न में आए, जयपुर के राजा को कहा, आज आपका यज्ञ मुझे बहुत पसंद है, आज मैंने आपके यज्ञ से संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे बहुत प्रसन्न। राज ने बुलाया ब्राह्मण को, कैसे ये किया था? अब तो ब्राह्मण ने कहा, राजा के तो गुप्तचर सब जगह होते हैं, कहीं हमको देखा हो, हमने तो खीर खा ली थी, झूठ बोलेंगे तो ज्यादा दंड मिल जाएगा। तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज कल हमसे गलती हो गई, हमसे रहा नहीं गया, थोड़ी तो हविष्य यज्ञ में जरूर डाली थी, बाकी प्रसाद हमने पा लिया। महाराज ने कहा, भगवान ने कहा, आज का यज्ञ मुझे बहुत पसंद आया है, कल से इससे डबल आएगा खीर, आधा यज्ञ में डालना, आधा आप ब्राह्मण खाना, क्योंकि ब्राह्मण के खाने से भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। सो पूछते हैं कि ये दो की सेवा हो तो निश्चित रूप से आदित्य को फिर पूछते हैं, क्या ऐसे तो नहीं है कि आपके पुत्र कहीं दुखी है, मिले नहीं है? तब आदित्य कह, श्री आदित्य वाच भद्रम द्वेज गवाम ब्रह्म धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम ग्रह मेधिम ग्रहान में। अपने पत्नी को पहले तो कहते हैं द्वेज, ये ब्राह्मण, और फिर कहती है ग्रह मेधि। आप भी तो घर में आ सकते हैं, घर गृहस्थी में आ सकते हैं, तो कहते हैं, हे सभ्य मेरे पति, गौ ब्राह्मण और धर्म का तो मैंने ठीक तरह से पालन किया है, मैं आपकी पत्नी हूं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, मैंने अच्छी तरह से ये कार्य किया है, और धर्म अर्थ काम ये सब जो है ये अच्छी तरह से मैंने घर गृहस्थी में पूरे किए हैं। अग्न्यो अतिथ्यो हो भृत्या, अग्नि का, अतिथि का जो मेहमान आया उसका अग्नि में हवि डाली है। भिक्षो ये चालिस्वा, कोई मेरे से भिक्षा मांगने आया उसको भिक्षा दी है। सर्वम भगवतो ब्राह्मण, कोई ऐसा धर्म के काम में गलती नहीं की है, सब अच्छी तरह से पालन किया है। कोनो में भगवान काम हो न संपद्येत मानस, यस्या भवान प्रजाधीश। आप जैसा जिसका प्रजापति पति हो वो धर्म से कैसे विचलित हो सकती है? एवं धर्मान परिभाषते, मैंने तो धर्म का पालन अच्छी तरह से किया है, परंतु एक बात है, तथैव मारीचि मनस प्रजा इमा सत्व रजः तमोजुषा। हे मरीचि के पुत्र कश्यप जी,
सारे देव दानव, कोई सतोगुण में, कोई रजोगुण में, और असुर जो तमोगुण में है, ये सब आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि दोनों का पिता तो कश्यप है। दिति के पुत्र दैत्य, दानु के पुत्र दानव, अदिति के पुत्र देवता, इन सब का पिता तो आप है। हे प्रभु, आप तो सबके साथ समान हैं। इसलिए कश्यप को कहते हैं पश्यति समान, सम पश्यति, बराबर सबको देखता है। उसके असुर भी पुत्र, उसके देवता भी पुत्र है, साथ समभाव से रहता है। इसको कश्यप, आप तो सबसे समान है, परंतु भगवान जो है वो तो भक्तों के रक्षक है। तथापि भक्तम भजे महेश्वरम, प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं मैं सबके साथ समान न द्वेष न प्रेम। भक्त जो है उनसे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि ये मेरा दोष नहीं है, ये भगवान का भूषण है, दूषण नहीं, ये दोष नहीं है, ये भगवान का भूषण है। भक्त वत्सल है भगवान। भगवान भी सबसे समान है, परंतु भक्तों को विशेष रूप से इंद्रारि व्याकुलम लोकम वृजंती युगे युगे, इंद्र के लोक में भी अगर समस्या हो तो भगवान रक्षा करते। तस्माद् ईशः भजन्त्या मे श्रेयः चिन्त्यं सर्वत्र हृतश्रेयो हृतस्थानम् सप्त नहीं पही मां पाहि मां प्रभो। मेरे पुत्र पथ भ्रष्ट हो गए, पद से भ्रष्ट हो गए हैं, असुर ने उनको स्वर्ग से भगा दिया है, उनकी रक्षा करो हे मेरे, मैं आपके शरण में हूं, आपके ये हमारे स्वामी, अब हमारे हित करो। और फिर कहते हैं असुर ने बहुत शक्ति के साथ स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था और उनका सारा श्रेय सुख अपने राज्य से बाहर कहाँ घूम रहे हैं, मेरे को देखे को कई दिन हो गए। और कहती है मग्ना व्यसने सागरे, मैं तो दुख सागर में डूबी हुई हूं, अपने पुत्रों को देखा नहीं है। यथा तानी पुनः साधो, दोबारा उनको अपना स्वर्ग मिल जाए, आप कोई ऐसा प्रपद्य, आप ऐसा कोई उपाय बताई। तथा वेदे ही कल्याणम धिया कल्याण कृतम, मेरे बच्चों का, इंद्र आदि देवताओं का कल्याण हो, 12 आदित्यों का कल्याण हो, ऐसा कार्य कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं अभ्यर्थो आदित्या तस्ताम आहा समयम विवा। आदित्य ने जब ऐसे प्रार्थना की तो कश्यप मुस्कुराए, थोड़ा सा मुस्कुराए, कहा अहो माया बलम विष्णु, विष्णु की माया कितनी बलशाली है। श्रेय भद्रम इदम जगत, स्नेह बद्धम इदम जगत, ये सारा जगत स्नेह में बंधा हुआ है। पुत्र मित्र पति पत्नी इनके स्नेह में सारा बंधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं ना, श्री कृष्ण स्वयं भगवान जब ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतार लेते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है ये सारे लोग संबंधों में बंधे हुए हैं, कोई पुत्र के प्रेम में, कोई मित्र के प्रेम में, कोई पति के प्रेम में, कोई पत्नी के प्रेम में। तो मैं जाके ऐसी सुंदर मधुर अपने पार्षदों को गोलोक से ले जाकर वात्सल्य की लीला करूंगा, सखा लीला करूंगा, प्रेम माधुर्य की रस विहार करूंगा, रास विहार करूंगा, और सब लोगों को निमंत्रण दूंगा कि जो संबंध संसार में रखने से आपके लिए बंधन हो जाता है वो सब संबंध मुझसे रख दो, मुझे पुत्र बना दो, मुझे मित्र बना दो, मुझे प्रेमी बना दो, मुझे स्वामी बना दो। किसी न किसी की नौकरी करते हो, मेरी नौकरी करो, मेरे को स्वामी बना। तो केवल प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए कृष्ण आते हैं। ये संबंध जो संसार में बंधन का कारण है, ये संबंध सब कृष्ण से हो जाए तो परम मुक्ति का कारण और भगवत भक्ति के माध्यम से भगवान के सानिध्य के कारण हो जाते हैं। तो यहाँ 2-3-2.5 श्लोकों में कश्यप भक्ति का उपदेश आदित्य को कर रहे हैं, 18 से 21 श्लोक तक, कि भक्ति करो,
भगवान को ही अपना सब कुछ समझ लो। लेकिन पुत्र मोह कितना बलवान है। क्वा देहो बहु भौतिको अनात्मा, ये शरीर है, ये भौतिक है, आत्मा इससे अलग है। क्वा च आत्मा प्रकृति ही पर, आत्मा तो प्रकृति से परे है। कस्य है पति पुत्र आद्य मोह एव ही कारणम, तो फिर ये शरीर को पति मानते हो। हमने तो ये जीवन में अनुभव तब होता है जब किसी का शरीर छूट जाता है तो सब लोग रोने लगते हैं। हम पूछते हैं किसके लिए रो रहे हैं? बोला वो चला गया, दादा चला गया। अरे दादा का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। बोला ये नहीं वो था, वो तब पता लगता है ये शरीर दादा नहीं था, इसके अंदर परमात्मा आत्मा था, इसके अंदर जो आत्मा था वो हमारा दादा था। लेकिन वो पता तब लगता है जब वो चला गया होता है। तो यहाँ कहते हैं ये सब संबंध शरीरों को अपना समझ रहे हो लेकिन आत्मा को जानते नहीं हो। वो कहते हैं अब कहते हैं, ये बता के कहते हैं उपतिष्ठस्य पुरुषम भगवतम जनार्दन, भगवान जनार्दन जो सबका पालन पोषण करते हैं। सर्वभूत गुहावश, कहाँ होते हैं? अगर पूछती है आदित्य भगवान कहाँ है? बोला सबके हृदय में बैठे हैं। सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं भगवान। सुहृद सर्वभूता नाम, सबका शुभ चिंतक हूं। वासुदेवम जगत गुरुम, जो वासुदेव सर्वत्र वसति इति वासुदेव, और जगत का गुरु है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। और जो कृष्ण की बात, जो दूसरों को वासुदेव की भक्ति सिखाता है, जो वासुदेव की भक्ति दूसरों को सिखाता है, वो भी जगत गुरु है। तो कृष्ण तो जगत गुरु हैं, लेकिन वासुदेव की भक्ति, कश्यप भी यहाँ जगत गुरु का कार्य कर रहा है, क्योंकि अपनी पत्नी को वासुदेव जनार्दन गोविंद कृष्ण की भक्ति का उपदेश दे रहा है। और प्रभुपाद जी उसी को जगत गुरु कहना चाहिए। जो श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करे तो उसकी भक्ति करो। सविद्यास्ति से कामान हरि धान अनुकंपन, दीन अनुकंपन। वो हरि कैसा है? उसकी भक्ति करोगे तो वो बड़ा दीन अनुकंपा, दीनों के ऊपर अनुकंपा कर। तेषान अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जतमन्नास्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। ऐसे दीनों के ऊपर बड़ी अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का अर्थ होता है उनके दुख को देखकर भगवान कांप जाते हैं। मेरा भक्त और इतना दुखी है, इतना और संकट में, ऐसा भगवान देख नहीं सकते हैं। हरि ही, ये हरि जो है, हरि के तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन महाप्रभु ने 2 अर्थ मुख्य कहे हैं। भक्तों का दुख हर ले, ताप संताप हर ले, और प्रेम दे के मन हर ले। मुरली मनोहर, मन को हरने वाला ये श्री कृष्ण है। तो कहते हैं हरि ही दीना अनुकंपम अमोघ भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। अमोघ का मतलब है कभी निष्फल नहीं जाती, निरंतर भगवान की प्राप्ति करने का और सब सुख सुविधा देने का साधन है। अमोघ भगवत भक्ति मेरा यही राज, भक्ति कर लो, सच में मत पढ़ो। श्री आदित्यवाच, अब आदित्य कह रही है, केनाहं विधिना ब्रह्मा उपस्थास्य जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्पो विदधावद्यात् मनोरथम। मुझे वो विधि बताइए जिससे मेरा मनोरथ पूरा हो, मैं वसुदेव की भक्ति करूंगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसलिए सर्वकामी हो या अकाम हो, को सब कामना हो तो भी भगवान की, अकाम सर्व कामे भ्यो मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन। ये भाव है कि यहाँ तो बेचारी ये कामना के साथ जा रही है, ये तो है सर्व काम वाली। अकाम कोई हो जिसको कोई कामना ना हो, या जिसी को मोक्ष की कामना हो, ये तीनों कामना वाले हैं। भक्त किसी के लिए नहीं जाता है, भगवत तो भगवान, भक्त तो भगवान की एकमात्र सेवा करने के लिए जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये कहती है मुझे रास्ता बताइए जिसके द्वारा मैं भक्तों करूं, भगवान वासुदेव को प्रसन्न करूं और मेरा मनोरथ पूरा हो। ये मनोरथ जो मन के रथ के ऊपर चलने, बाहे मनोरथ, अपने मन के रथ के ऊपर चलने वाले कैसे संत। लेकिन ये देव माता है आदिति, ये भगवान की माता बनने जा रही है। आदिशा त्वम द्वेज श्रेष्ठा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरे को आदेश दीजिए, मैं क्या करूं।
विधि, उसकी विधि बताइए। तद उपधावनम, उसको मैं अच्छी तरह से पालन करूं। आसु तुष्यति में देव, मैं उस भगवान वासुदेव जनार्दन को प्रसन्न करूं। सीदयन्त्यः सह पुत्र कई, और जिसके द्वारा मेरे पुत्रों के लिए जो मैं दुखी हो रहा हूं उससे मैं मुक्त हो जाऊं। तो कश्यप जी अब उनको पयोव्रत बता रहे हैं। ये 22 से 62 श्लोक तक, ये 40 श्लोकों में पयोव्रत की विधि का वर्णन है। अब इसको हम संक्षेप में कह देंगे, लेकिन पहले कश्यप श्री कश्यप वाच ये तन्मे भगवान पृष्ठः प्रजा कामस्य पद्मजा। पद्मजा कहते हैं ब्रह्मा जी को, जिसका जन्म पद्म के ऊपर हुआ। उसको जब मैंने पूछा था कि आप मुझे प्रजापति बना रहे हो, मुझे प्रजा को उत्पन्न करना है, तो मुझे कोई साधन बताइए। मैं ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम, तो ब्रह्मा जी ने मुझे केशव को संतुष्ट करने का, केशव कलिमलहारी, केशव जो सब केशव का अर्थ है क ईश, ब्रह्मा और विष्णु के जो स्वामी है सो है केशव। केशव क ईश व का ब्रह्मा ईश शंकर, और वह उसका स्वामी वो है केशव। और दूसरा केशव का अर्थ है जिसके सुंदर घुंघरालू बाल हैं, बड़े केश जिसके सुंदर है वो केशव है। उस केशव को कैसे व्रत से मैं प्रसन्न, ये ब्रह्मा जी ने मुझे, जिसको कहते हैं परंपरा। कश्यप ने कोई अपना नया व्रत नहीं बनाया, जो ब्रह्मा जी से सुना था, जो आदि गुरु है एक दृष्टि से, उससे जो सुना था वही बात अपनी पत्नी को बताने जा रहे हैं। यहां देखिए दिति ने भी पूछा था कि मुझे ऐसा कोई साधन बताओ जो इंद्र को मारने वाला पैदा हो। जी बड़े दुखी हो गए। दिति ने बड़ी पूजा पाठ करके उसको प्रसन्न करने के लिए बहुत चापलूसी करके, और जब कहा कि क्या चाहिए तुमको, तो कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे। कश्यप बड़ा दुखी हो गया कि कहां मैं पत्नी के जाल में फंस गया, एक पुत्र को मारने के लिए दूसरे पुत्र की उत्पत्ति करूं। फिर भी कश्यप ने कहा वचन दे दिया, लेकिन तब 1 साल का व्रत बताया, लंबा व्रत बताया, और कहा कि इस व्रत में कोई त्रुटि हो गई तो फल नहीं मिलेगा। अगर काम कोई गलत के लिए पूछा जाए तो उसको इतना लंबा व्रत बताया 1 साल का, और यहाँ ये 12 दिन का व्रत बताया अच्छे काम के लिए, अपने पुत्रों का हित है चाह रही है। तो दोनों के अंतर है कि एक भगवान की भक्ति का माध्यम है और एक असुरी प्रवृत्ति है, तो दोनों का व्रत भी लंबा है और अलग है। तो कश्यप जी कहते हैं ऐसे जब मैंने पूछा था तब ब्रह्मा जी ने मुझे व्रत जो बताया था उसकी बात कर रहा हूं। कब शुरू होता है ये? फाल्गुन मास में। कौन सा? जब चांदनी रात है, शुक्ल पक्ष है। फाल्गुन फरवरी मार्च महीना, फरवरी और मार्च का फाल्गुन का महीना जो है उसकी जो 15 दिन चांदनी के होते हैं, उमावस से लेकर 12 दिन तक इस व्रत को रखते हैं। किसके ऊपर? पयो व्रतम, पयो कहते हैं दूध को, केवल दूध पिया जाता है। उमावस के दिन बस थोड़ा सा दूध पीते हैं, फिर जितना चंद्र बड़ा होता है उतना दूध को बढ़ाते जाते हैं, और त्रयोदशी के दिन व्रत को पूरा करते हैं। इसको कहते हैं भक्त्या। वो व्रत कैसे रखना है? भक्त्या परमया अनवितः, बहुत पूर्ण रूप से भक्ति से इस व्रत को, केवल ये दूध नहीं पीना है, भगवान की उपासना करनी है। किसकी उपासना करें? पहले क्या करें? इस व्रत की विधि बता रहे हैं कि कहीं सूकर के द्वारा मिट्टी है वो शरीर पे लगाए, चलती हुई नदी में स्नान करे, और स्नान करने के बाद उमावस के दिन ये स्नान करे, और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करे। कौन सा मंत्र है? ये मंत्र है पृथ्वी से आज्ञा। त्वम देवी आदि वारायणी, हे वारा पत्नी पृथ्वी देवी, रसाया स्थान इच्छति, आपकी इच्छा थी कि रसातल से निकाल के आपको धरती को अपनी जगह पे स्थापित करे। वारा देव ने ये किया,
तो अब नमस्तुभ्यम, मैं नमस्कार करती हूँ। पाप नामम मे प्लाशय, मेरे सारे पाप नाश हो जाएं, क्योंकि बिना पाप नाश हुए भगवान के सेवा करने के लिए शुद्ध होना चाहिए। तो ये पहले पृथ्वी को प्रार्थना करनी चाहिए स्नान करके, और फिर अपना नित्य कर्म रोज जो नियम से करना है, जप आदि करना चाहिए, और बड़े ध्यान से साथ समाहित निवृत्त आत्म नियमो, रोज अपना जो नियम है वो तो पूरा करना चाहिए बड़े ध्यान से। उसके बाद देवम अर्चेत अर्चायाम, अब अर्चायाम, अर्चा विग्रह, भगवान के सुंदर विग्रह, श्री नाम किसका है? भगवान के विग्रह, और करना चाहिए भगवान के विग्रह की उपासना करनी चाहिए। उसके साथ गुरु की उपासना करनी चाहिए, गुरु से आज्ञा लेके करनी चाहिए, अग्नि यज्ञ आदि के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ये देवलोक की विधि है। अर्चायाम स्थंडिले सूर्य है जले वह नौ गुरवो अपि, गुरु अग्नि सूर्य इन सबको नमस्कार करना, भगवान की पूजा। मंत्र कौन सा? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मह्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। भगवान श्री वासुदेव आपको नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र से पूजा करें, और प्रभुपाद लिखे ये 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो नारद जी ने छोटे बालक ध्रुव को दिया था। और उसके बाद इस प्रयोव्रत करते समय विशेष जो है, तो ये प्रयोव्रत के प्रार्थना के मंत्रों का यहाँ बहुत बड़ा है। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च, ये सारे देवता आपकी सेवा में है, रुद्र आपकी सेवा में है, शिव रुद्र शक्ति धराय जो शक्ति का धारण करता है, और इनको नमस्कार करें, सारे देवताओं का सम्मान करें। नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय च नमः नारायणाय ऋषि नराय, नर नारायण ऋषि को प्रणाम करें जो तपस्या करते हैं। और नमो मरकत श्याम विपु वपुषे अधिगते श्रेय, मैं भगवान केशव को नमस्कार करता हूं जो पीतांबर धारण करते हैं। और कैसे है? नमो मरकत श्याम वपुषा, जैसा नीलमणि श्याम होती है ना, ऐसा उनका रंग है। और अधिगत श्री है, लक्ष्मीपति जो है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्ते ऐसे भाव करे। और सुंदर प्रणाम करते करते और सब भक्ताओं, और फिर क्या करें? इन मंत्रों से भगवान का आदर करे, पूजा करे। और उसके बाद भगवान को फूल अर्पण करे, अगरबत्ती अर्पण करे, निवेद्य अर्पण करे, चंदन अर्पण करे, पूरी 16 उपचार की पूजा करे। और पूजा करने के बाद भगवान की आरती आदि करके, निवेद्य अर्पण करके, फिर दंडवत प्रणाम करे। और हाँ, जो यह मूल विद्या ऐसा वो फिर एक हवि के लिए विशेष रूप से कहते हैं, चावल बहुत अच्छे सुगंधित चावल घी और दूध में पकाकर, और थोड़ा उसमें गुड़ की हवि डालकर, ये लिखा है, गुड़ शब्द भी लिखा है, श्रुतम पयसी, पयस पायसम बनाए दूध की, श्रुतम भगवान को अर्पण करने के लिए, निवेद्यम करने के लिए, शाल्य अन्नम बहुत अच्छे चावल जो है उसकी, विभवे सती सरपी सुख गुड़म, वो गुड़ के साथ, उसमें गुड़ डाले, हाँ घी के साथ घी डाले, गुड़ डाले, और बहुत सुंदर पायसम बनाए, और भगवान को 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर अर्पण करे। और उसके बाद क्या करे, इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, निवेदितम तद भक्त्या, भगवान को अर्पण करने के बाद भगवान के भक्तों को प्रेम से भोजन कराए, ब्राह्मणों को भक्त्या ददयाद भुंजित वा स्वयं, उसके बाद स्वयं भोग प्रसाद ग्रहण करे, पहले भगवान को, फिर भक्तों को, फिर स्वयं करे।
और उसके बाद भगवान को आचमन करा के तांबूल आदि दे। ये तो पूरी पूजा की विधि बता रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात है, उसके उपरांत 108 बार इसी मंत्र का उच्चारण करे बैठकर, और फिर परिक्रमा करे भगवान की, और आनंद के साथ भगवान को प्रणाम करे। और फिर क्या करे, कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन रोज कराए, 2 ब्राह्मणों को बड़े प्रेम के साथ भोजन कराए। दिव्यावराम भोजयेद विप्रान, कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराए, और फिर अपने परिवार के साथ, मित्र बंधुओं के साथ स्वयं बैठ के भोजन करे। और भोजन को इतना प्रसाद फिर इतना बांटे कि कोई भी प्रसाद से वंचित नहीं रहे। एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है, यहाँ लिखा है, पयो भक्ष्यो व्रतम इदम चरेद विष्णु अर्चना आदिता पूर्वजः जोवा अग्निम ब्रह्मणाश्चापि भोजयेत। भगवान का ऐसे बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करने के बाद पयोव्रत करने वाले को दूध ही केवल पीना है। और ये पूरा जब हो जाए और यज्ञ आदि हो जाए तो ब्राह्मणों को सामने बिठा के अच्छी तरह से भोजन कराए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद 12 दिन जब पूरे हो जाएं इस व्रत के, तो भगवान का आदर करके, भगवान का पूजन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करे, नीचे सोए। ये सारी विधि विधान है। और फिर सबको भोजन भंडारा कराए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम प्रसाद जब वितरण करते हैं तब ये नहीं देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है या चंडाल है, कोई भी आए उसको प्रसाद कराना जाए। वासुदेव प्रायण, सारा समय जब व्रत रखे तो भगवान का शरणागत करे। व्रजेत असद आलापम, कोई झूठी बात मुख से न निकाले। भोगान उठाए तथा कोई झूठ न बोले, भगवान का शरणागत रहे। इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं करे, हिंसा की बात नहीं करे, जीवों को हिंसा न करे। अहिंसम सर्वभूतानाम। तो ये पयोव्रत पूरा हो जाए और फिर बहुत बड़ा भगवान का महा उत्सव किया जाए और उस बड़ा प्रसाद बनाया जाए, पुरुष सूक्त मंत्र का उच्चारण किया जाए और सुंदर भोजन जो है भगवान को अर्पण करें। और अब एक बात कह रहे हैं कि पूजा कभी बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती है। आचार्यम ज्ञानम संपन्नम वस्त्र आभरण धेनु भी, जो आचार्य यज्ञ का है उसका बड़े आदर के साथ वस्त्र दे, गाय दे। और तोष्येद ऋत्विग चैवत, और जो उसके साथ होता है, ऋत्विग होता है, मंत्र उच्चारण करने वाला, उन सबको आराधनम हरे, भगवान की आराधना करके उन सबको भी वस्त्र आभूषण देना चाहिए। भोज्येताम, और उन सबको प्रेम से भोजन कराना चाहिए। गुणवता सद अनेन, बड़े अच्छे सुंदर अन्न का भोजन कराए। सुचि स्मिते, बड़ी खुशी के साथ कराए, मुस्कुराते कराए। अन्याश्च ब्राह्मणास, दूसरे भी ब्राह्मण कोई हो तो उनको कराए। शक्त्या चवे तत्र समागता, यथाशक्ति जो भी वहां आया है उन सबको प्रेम से भोजन कराए। दक्षिणाम गुरवे दद्यात्, गुरुजनों को दक्षिणा देनी चाहिए। ऋत्विगे व्योच यथार्थ, जितना संभव हो उस यज्ञ तब पूर्ण होता है। अदक्षिणम यज्ञ पूरा नहीं होता है, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। पाकांश्च, और उन सबको कम से कम, कोई लिखा है कोई प्रसाद वितरण के समय कैसा भी व्यक्ति आए सबको खिलाना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप विष्णु प्रणितम विद्वान भुंजिता सह बांधवा, फिर सबको खिलाने के बाद दक्षिणा आदि देकर, सबकी आशीर्वाद लेकर, और फिर स्वयं परिवार के साथ भोजन करे। और ऐसे अगर करेगा, अब व्रत की विधि का पता लगा तो माता आदित्य ने पयोव्रत करना शुरू किया। और जैसे पयोव्रत वो कर रही थी, क्या कर रही थी, त्वम चाने आगे
सम्यक चिरणे केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नित्यात्मा भजा अव्ययम। सब इन नियमों का पालन करके आदित्य ने बड़ी अच्छी तरह से इस व्रत को पूरा किया। और जैसे पयोव्रत पूरा हुआ है, भगवान आदित्य के सामने प्रकट हुए हैं, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आदित्य के सामने प्रकट हो जाते हैं। ये हम अब दूसरे श्लोक अध्याय में जा रहे हैं। भगवान ने प्रकट हो गए, आदित्य इतनी आनंद में विभोर हो गई कि भगवान को कुछ कह नहीं पाई, बोलने की उसके अंदर सामर्थ्य नहीं रह गया। और जब बोल नहीं पाई, श्री शुक्वा इति उक्त्वा सादिति राजन स्वभाद्र कश्यप वै स्व। सुखदेव महाराज कहते हैं आदित्य जैसे पति ने कश्यप ने कहा था, उन्होंने पयोव्रत जब पूरा किया उसमें कहीं भी आलस नहीं किया, अच्छी तरह से किया, भगवान का ध्यान किया अच्छी तरह से। तो भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में। तस्याः प्रादुर्भूत तात भगवान आदि पुरुष। भगवान आदि पुरुष आदित्य के सामने प्रकट हो गए। पीतवासः, पीला पीतांबर पहना हुआ था, चतुर्बाहु, चार उनकी भुजाएं थी, शंख चक्र गदाधर, ऐसा भगवान सामने प्रकट हो गया। तम नेत्र गोचरम वीक्षे। अरे उनको जैसे देखा भगवान को आदित्य ने, प्रीत विवला, आनंद में विभोर हो गई, आनंद में विभोर हो गई और एकदम खड़ी, सहसा उठाया, एकदम उठ के खड़ी हो गई। लिखा है कि भगवान का पट खुले तो उठ के खड़ा होके आदर से भगवान को, गुरुदेव आए तो उठना चाहिए, बड़ा माता पिता बड़ा कोई आए तो उठना चाहिए। उठते हैं तो प्राण निकलने से बच जाते हैं, नहीं उठता है उसको प्राण निकल जाते हैं। उठो, एकदम उठ के आदर से उनके लिए उठ गई। न नाम भुवि काये न दंडवत प्रीति विवला, एकदम दंडवत प्रणाम किया। वैसे लिखा है दंडवत प्राय नारी को पंचांग प्रणाम करने का विधि विधान है। 5 अंग नारी का शरीर पे, पृथ्वी पे लगना चाहिए, माथा, 2 भुजाएं और 2 घुटने। वक्षस्थल नारी का पृथ्वी को लगे, ये पृथ्वी को पसंद नहीं है। भगवान की पूजा का सामान शंख आदि धरती पे हो, बिना आसन के धरती को पसंद नहीं है। और ब्राह्मण बिना आसन के धरती के ऊपर बैठे, वो धरती को पसंद नहीं है। तो पृथ्वी माता कहती है ये 3 चीजें मुझे पसंद नहीं है। इसलिए माता ने प्रणाम किया और आदित्य चुप हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी है, कुछ बोल नहीं पा रही है, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। भगवान का दर्शन हो गया, सारे शरीर के रोमांच हो गया, पुलक का कुल आकृति ही रोमांच हो गया और सारा शरीर कांपने लगा। तद दर्शन अत्युत्साह गात्र व्यपत्तो, सारे अंग, इसको कहते हैं अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो गए। आदित्य के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, आरती जी बड़ी मगन हो गई। महाराज परीक्षित, फिर आदित्य ने भगवान को कुछ, जब थोड़ा सा सामान्य स्थिति हुई तो भगवान को 3-4 श्लोकों में आदित्य प्रार्थना करती है। आदित्य जी बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत गदगद गिरा से प्रार्थना की। आदित्य क्या कहती है? यज्ञेश यज्ञ पुरुषा अच्युत तीर्थ पाद, हे यज्ञ के स्वामी, हे यज्ञ पुरुष, हे अच्युत, हे तीर्थ पाद, जिसके चरण सबको पवित्र करने वाले हैं। तीर्थ सर्व, ओ सभी तीर्थों का सार आप हो। श्रवण मंगल नाम ध्येय, आपके नाम का श्रवण करना कल्याणकारी है, मंगल है। आपन लोक, बहुत सुंदर नाम कीर्तन जैसे कर रही है। यज्ञेश यज्ञ पोष अच्युत तीर्थ पाद, कितने सुंदर भगवान के नाम लेके नाम संकीर्तन कर रही है। और फिर आप बहुत सुंदर 3-4 श्लोकों में प्रार्थना करके माता जी
आयो परम वपु अभीष्टम अतुल्य लक्ष्मी। हे अनंत भगवान, आयु परम, जो अपनी बड़ी उम्र चाहे, अपना शरीर, वपु अभीष्टम, अतुल्य लक्ष्मी, जिसको चाहिए ऊपर नीचे के लोग ये सारा लोग धर्म अर्थ काम ये सब मांगते हैं, इसलिए आपको प्रसन्न करते हैं। मैं क्यों करती हूँ मुझे मालूम नहीं। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब कमल नयन भगवान ने ऐसी, जो अंतर्यामी है सबके हृदय में, ऐसे आदित्य की पूजा और प्रार्थना सुनी, तो भगवान ने उनको क्या उत्तर दिया। श्री भगवान वाच देव माता भवत्या में विज्ञातुम चिरकांक्षितम। हे देव माता, तुम मेरे दर्शन की बहुत बड़ी पूजा प्रथा का साथ मुझे देखना चाहती थी। यक्षप्त नहीं हृत शृणाम, मैं जानता हूं आपके हृदय में क्या इच्छा है। आप देवताओं की माता है, उनका हित चाहती हो। उनका स्वर्ग चला गया, उनका श्री चली गई, उनका धन चला गया, और इस वक्त वो अपने राज से निकाले गए हैं, मैं जानता हूं। और आपकी इच्छा है कि उनको वापस राज मिले। उनको राज तब मिलेगा जब असुरों ने जो उनके ऊपर आक्रमण किया है उनको दंडित किया जाएगा। उसकी स्त्रियां जब रोएंगी, आपका ये मनोरथ है, मैं समझता हूं। और आपके पुत्रों को इंद्र ज्येष्ठ ही स्वतनई, अपने पुत्र को वापस राज मिला जाए। लेकिन फिर भगवान एक बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे देवी, इस समय प्रायो अधुनाते असुर युद्ध नाथा, जितने असुरों के युद्धपति है, जो उनके सेनापति हैं, अप्रायण्याय इति देवी मति, प्राय वो सारे इस वक्त अजय हैं, उनको विजय, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान कह रहे हैं यत्ते अनुकलेश्वर विप्र गुप्ता, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको शरण दे रखा है। ब्राह्मण के शरण में जाए तो मैं उसकी हत्या नहीं करता। गो ब्राह्मण हिताय, प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में लिखा है कि भगवान गो और ब्राह्मण का हित चाहते हैं। ब्राह्मणों को 18वीं बार मथुरा में आए तो भगवान ने कहा इस बार अगर जरासंध हार गया तो ब्राह्मणों को मार देगा, और मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आता हूं, इसलिए हम रणछोड़ होने को तैयार हैं। हम रण छोड़ेंगे लेकिन ब्राह्मणों को मरने नहीं देंगे। तो भगवान तो ब्राह्मणों का रक्षक है। तो यहाँ आज भगवान कहते हैं बलि महाराज ब्राह्मणों के सुरक्षा में है, और जो ब्राह्मण जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं उसमें विविधान नहीं डालूंगा, क्योंकि ये मेरा ब्राह्मणों की रक्षा, गौ ब्राह्मण रक्षा करना, ये तो मेरा उद्देश्य है जीवन का। यत्ते अनुकूलेश्वर विप्र गुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, अगर उनके ऊपर हम बलात् कुछ करेंगे तो उससे सुख नहीं मिलेगा। अथापि परंतु अथापि उपायो मम देवी चिंतयत, मैं एक और कोई उपाय मेरी माँ में चिंतन करता हूं। संतोषयते वृत्तचर्यया, आपके व्रत से मैं बड़ा संतोष हुआ हूं, तो आपको निराश भी नहीं कर सकता और उनके साथ भी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों से रक्षित है। तो क्या करेंगे? मम अर्चनम नारथी गंतम, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मेरी पूजा करे और उसको फल नहीं मिले, ऐसे नहीं हो सकता है। श्रद्धानुरूपम फला हेतु कत्वा, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे उसका फल मैं देता हूं। तो आपने मेरी पूजा की है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्, तो मैं आपको फल भी दूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तव्यार्चितश्चाहम्
अपत्य गुप्तये। आपने पयोव्रत अपने पति के कहने के ऊपर बड़ी सावधानी से किया है, और इसलिए स्वांशेन पुत्रत्वं पयति ते सुतम, मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मुझे आप माता पिता के रूप में मैं आपको स्वीकार करने जा रहा हूं। गोप्तास्मि मारीच तस्य, आप अपने पति के अंदर मेरा ध्यान करो। कश्यप के अंदर, मरीचि के पुत्र के अंदर तपस्या, मैं उनकी तपस्या भी, आपके पति की तपस्या और उसका सधर्म पालन प्रजापति का, और आपके व्रत से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आपके घर में आऊंगा। इन दोनों से मैं प्रसन्न हुआ हूं। उपधाव पतिम भद्रे, अपने पति में मेरा ध्यान करो हे देवी। प्रजापतिम अकल्मषम, प्रजापति जो दक्ष है उसमें मेरा ध्यान करो, क्योंकि वो अकल्मषम है। अकल्मषम का मतलब उसमें कोई कल्मश नहीं है, वो बहुत शुद्ध हो गया है और तपस्या से इतना पवित्र हो गया है कि उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा। उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम माम च भाव्यति पत्याव एवं रूपम अवस्थितम। अपने पति को पूजा करो, उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा, उसका हृदय पवित्र है। नैतत् प्रसम्माख्येयं प्रश्रयापि कथंचन सर्वं संपद्यते देवी देव गुयां संस। हे देवी, कोई आपसे अगर पूछे भी कि आपके व्रत का फल क्या हुआ, किसी को मत बताना, इसको गोपनीय रखना। देव गुह्यम, ये गोपनीय रखोगे तभी फल मिलेगा, तभी सफलता मिलेगी। सर्व संपद्यते, इसको गुप्त रखना, किसी को बताना मत। सुखदेव महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान दर्शन देने के बाद अदृश्य हो गए, और फिर देवहूति माता आदिति के यहाँ भगवान कैसे प्रकट होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में आएगा। कश्यप, जिसका ज्ञान बहुत शुद्ध है, सवै समाधि योगे न कश्यपस्तद अबुध्यये प्रवेशम आत्मनि, भगवान कश्यप के हृदय में प्रवेश किया। सवै समाधि योगे न कश्यपस्त अबुध्येत प्रविष्टम आत्मनि हरे अंशम है अवतार अथेक्षण। भगवान अपने अंश के साथ, अंश अवतार के रूप में कश्यप के हृदय में, पवित्र हृदय में प्रवेश हुए। तो भगवान का प्रकट एक कोई स्त्री पुरुष के मिलन से होता है, ऐसे नहीं होता है। कृष्ण भगवान के अवतार के समय में लिखा है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविशेष अंश भागे न मन अनंक दुमदुभी। वसुदेव का नाम अनंत दुमदुभी है, उसके मन के अंदर भगवान अपने अंशों के साथ प्रवेश हुए। तो ऐसे कश्यप के हृदय में भगवान अपने अंश के अंश, वहां सारे अंशों को लेकर पूर्ण भगवान थे, यहाँ भगवान का एक अंश है। अंश के जैसे अंश और कला होती है, एते अंश कला, भगवान तो अंश के लोग। स्वादित्य वीर्यम ददात तपसा चिर संभृतम समाहिता मना राजन दारुण्य अग्निम यथा अनिला। जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, ऐसे जैसे भगवान कश्यप के अंदर आए तो उन्होंने अपने अंदर से उस भगवान को आदिति के उदर में स्थापित कर दिया। यहाँ वीर्यम शब्द जो है संस्कृत में, उसका अर्थ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान के तेज को। भगवान का ध्यान कर रहा था समाहित मन से, जैसे आग लगे कहीं, जैसे हवा का झोंका आए, तेज हवा लगे और वन में लकड़ियां घिसे और आग लगे, इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। कहाँ? आदिति के, कश्यप जी के मन से आदिति के हृदय में चले गए। अब जो आग है वो लकड़ी का हिस्सा नहीं है,
तो ऐसे भगवान का शरीर जो है न कश्यप का है न आदित्य का है। हमारा शरीर तो माता बनाती है, बीज भगवान पिता देता है, लेकिन ये तो भगवान का शरीर है। जैसे अग्नि लकड़ी से अलग होती है, ऐसे भगवान का प्रकट हुआ है। और इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए कि भगवान हार्ड मांस से पैदा हुए। अब आदित्य के गर्भ में भगवान आ गए। किसी ने कहा भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं? ये प्रश्न उठता है कि भगवान गर्भ में कैसे आते हैं। तो हम उत्तर देते हैं कि भगवान सब जगह है कि नहीं? भगवान तो सब जगह है। अगर भगवान सब जगह में है तो गर्भ में क्यों नहीं है? क्या गर्भ सब जगह से बाहर है क्या? कोई कहते हैं भगवान मूर्ति में है। क्या भगवान मूर्ति में है क्या? लोग पूछते हैं। तो हम पूछते हैं क्या भगवान सब जगह है? हाँ जी, भगवान सब जगह है। अरे भगवान सब जगह है तो क्या मूर्ति में नहीं हो सकते क्या? क्या मूर्ति सब जगह से बाहर है क्या? भगवान तो उत्तरा के गर्भ में चले गए परीक्षित को रक्षा करने के लिए। वो उसके गर्भ में प्रवेश हुए सबके सामने और परीक्षित की रक्षा कर ली। इसलिए उत्तरायण का एक अर्थ है कि सूर्य, जब सूर्य मकर राशि में जाता है उसको उत्तरायण कहते हैं 14 जनवरी को। लेकिन भीष्म पितामह का उत्तरायण 14 जनवरी नहीं थी। भीष्म पितामह का उत्तरायण था उत्तरा का गर्भ में जाने वाला श्री कृष्ण। उत्तरायण का मतलब है उत्तरा अयनम यस्य, जिसका गर्भ भगवान का निवास स्थान हो गया थोड़ी देर के लिए, वो उत्तरायण श्री कृष्ण है। उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। तो अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि कश्यप हमारे मरीचि के पुत्र के यहाँ भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर भगवान को गर्भ में स्तुति की। जैसे श्री कृष्ण देवकी के उदर में आए वसुदेव के मन से, वहां प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है कि इसको कहते हैं दीक्षा। गुरु के हृदय से प्रकट किया हुआ भगवान शिष्य के हृदय में स्थान अंतर होता है, इसको कहते हैं दीक्षा। मानो कश्यप ने आदित्य को दीक्षा दे दी और उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार अमित, हाँ अमित कंगाल भाई भागे त्वये पाछे धाये त्वये पाछे पाछे। गुरु आपके हृदय में कृष्ण है, आप दे सकते हो, मैं कंगाल हूं। तो ये है भगवान के अवतार की विधि। ब्रह्मा जी अब प्रार्थना कर रहे थे आदित्य के उदर में। ऐसे हम कह रहे थे पूरी एक गर्भ स्तुति है भागवत के 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय, गर्भ स्तुति। शंकर ब्रह्मा चंद्र इंद्र नारद आदि आकर भगवान श्री कृष्ण को कहते सत्यव्रतम सत्यम, आप परम सत्य हो, आपने वचन दिया था, आप आ गए हो। आप नहीं आते तो लोग आपको कैसे जान सकते? आप आते हैं तो आपके चरण कमलों की नौका बनाकर तब पाद पोते न महत कृते न महात्मा संसार सागर को पार हो जाते हैं। और जाते जाते ये भक्ति की नौका पीछे छोड़ जाते हैं कि दूसरे लोग भी भगवान के धाम जा सके। अब हम 19वें अध्याय में पहुंच रहे हैं। श्री शुकवाच इति वैरोचनैर्वाक्यम, वैरोचनैर्वाक्यम, वैरोचन का पुत्र बलि। ओ हम आगे चले गए थोड़ा, 19:1 18 पहले पढ़ना चाहिए। एक हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शुकवाच इथम वृंच स्तुत कर्म वीर्य, वृंच कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जैसे अब यह स्तुति पूरी किया, और जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति पूरी किया तो भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रादुर्भवो वंश बहु आदित्याम चतुर्भुजम शंख गदा वज्र चक्र पिशंगवास नलिनये क्षण। जैसे अब ब्रह्मा जी की स्तुति पूरी हुई, आदित्य के यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म, शब्द लिखा है चतुर्भुज शंख गदा, अबज का मतलब कमल, और चक्र हाथ में लिए, पीला पीतांबर पहना हुआ, और नीला नलिनाद्यते नलिनाद्यक्षण,
कैसी आंखें हैं भगवान की, बहुत सुंदर नलिन अक्षण भगवान की कमल नयन भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान ऐसे प्रकट हुए, कैसे भगवान के अंग सारे का वर्णन है। कौत्सव मणि लगी हुई थी, भगवान की पहचान कौत्सव मणि थी, श्री वत्स का चिन्ह था। पूरा पढ़े, श्यामा श्यामा वदाति तो जहां सराज कुंडला, वदाति तो जहास कुंडला। भगवान कैसे थे? श्याम वदात, श्याम वर्ण के थे। और उनका श्री वदन अंबुज, उनका मुख कमल जो था कैसा था? उनके कानों में सुंदर कुंडल लगे हुए थे, उलसत बड़े चमक रहे थे। और उनके छाती श्री वत्स वक्ष, वक्ष स्थल के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह था। और हाथों में बाजूबंद बंधे हुए थे। और बहुत सुंदर भगवान के कंकणी और पांव में पायल थी। मधुव्रत व्रात, सुंदर भगवान का फूलों की माला। ऐसे भगवान के साथ बच्चा कोई पैदा हुआ है क्या कहीं दुनिया के अंदर? सुंदर माला पहनी हुई भगवान, क्रीट कुंडल पहने हुए, कौत्सव मणि पहनी हुई, और कश्यप के रूम के अंधकार को हटाते हुए चमक रहे। उनका स्वरोचिषा, बड़ा चमक गया पूरा घर, सब दिशाएं चमक गई, तीनों लोक आनंदित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के सामने ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप जल गई, नदियां स्वच्छ हो गई, दिशाएं पवित्र हो गई। तो यहाँ भी देवता, गाय, ब्राह्मण लिखा है। गो द्वेजा, गौ ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए कि अब हमारा रक्षक और पालक आ गया है। कौन सा दिन था जब भगवान प्रकट हुए? वामन द्वादशी हम सब जानते हैं। श्रोणायाम स्वर्ण द्वादश्याम, ये द्वादशी जो आती है, कौन से महीने में ये द्वादशी आती है? द्वादशी भद्र, भाद्र, भाद्र भद्रे के महीने में भाद्र द्वादशी, श्रवण, द डे ऑफ द्वादशी या भाद्र मंथ। श्रवण द्वादश्याम, जब चंद्रमा स्वर्ण नक्षत्र में होता है, उस अभिजित मुहूर्त में, वो मुहूर्त भगवान की अभिजित मुहूर्त में भगवान जब सब नक्षत्र बहुत सुंदर अपने अपने स्थान पे थे, तब भगवान का प्रकट हुआ। भगवान के जन्म का समय क्या है? श्रावण द्वादशी। इसका मतलब है भाद्र महीने की शुक्ल द्वादशी 12 को। और उस समय चंद्रमा मून नक्षत्र में थे, अभिजित उस वक्त नक्षत्र था। श्रुति कहती है अभिजिन्नाम नक्षत्रम, अभिजित वो नक्षत्र है, आशा, ऊपर आषाढ़ नीचे श्रावण होता है, उसको अभिजित है। और जो ज्योतिष जानते हैं वो कहते हैं, इन सब का बहुत ज्योतिष का वर्णन लिखा है। मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त भगवान शुभ मुहूर्त में प्रकट हुए? अभिजित मुहूर्त था, सब जगह मंगल ही मंगल था। इसका अर्थ है विजय होगी। अभिजित नक्षत्र का मतलब है अब विजय हो गई, अब विजय होगी। अब लिखा है कि कौन सा किस में राहु कहाँ है, चाहे केतु कहाँ है, सब श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री में सब लिखा है। द्वादश्याम श्वेतास्तिष्ठम मध्यान्धगतो नृप, विद्या नामास प्रोक्ता यस्याम जन्म विदो हरि। हे राजन, द्वादशी जब सूर्य मध्य में थी, दोपहर का समय था, भगवान का प्रकट्य हुआ, इसको विजय कहते हैं। विद्या नाम सा प्रोक्ता। अब भगवान शंख दुमदुभेर नेदुर, उस वक्त आकाश में देवताओं ने शंख बजाए, दुग्धवगी भेरिये बजाई, और चारण नाचने, चारण गाने लगे, गंधर्व नाचने लगे, सिद्ध आदि सब आ गए, और ये सब प्रसन्न हो गए। सिद्ध, चारण, विद्याधर, कुंभ पुरुष
ऊपर के लोगों के सब लोग। और अब ये सब हो रहा है। आदित्य अब देख रही है अपने पुत्र को। दृष्ट्वादितस्तं निज गर्भ संभवम परम पुंसां समुदमाप विस्मिता गृहीता देहम निज योग माया प्रजापतिश्चाचे विस्मिता। सबके सामने चतुर्भुज रूप प्रकट होके एकदम अपनी योग माया से एक छोटे ब्राह्मण बन गए, वामन देव बन गए, बटु ब्राह्मण बन गए। ये है भगवान। जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता एक्टर कोई अपने आप को बदल दे, ऐसे भगवान ने बदल दिया। जैसे चतुर्भुज रूप में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट होने के बाद छोटे प्राकृत शिशु की तरह हो गए और रोने लगे। तो जा कहा देवकी ने, रोना मत, कंस को पता लग जाएगा, कहेगा माँ छोटा बच्चा भी हो, रो भी नहीं, कैसे होगा, कोई बात नहीं, मुझे ले चलो यहाँ से। वहां भगवान ने कह दिया और यहाँ छोटे ब्राह्मण बन गए। और उस वक्त कश्यप ने कहा जय हो जय हो जय हो। लिखा है प्रजापतिश्चा जयति विस्मित। हाँ, विस्मित हो, आश्चर्यचकित हो गए, जय हो जय हो। ऐसे वो चतुर्भुज वामन देव हो गए। तब क्या हुआ? तब भगवान का बहुत सुंदर शरीर अब वो छोटे ब्राह्मण का बन गया। यत्तद्वपो भाति विभूषण आयुधै। जो भगवान के शरीर में सुंदर सुंदर आभूषण था और हाथ में जो शंख चक्र आदि थे। अव्यक्त चिद व्यक्तम अधार्यद धरि। और हरि, वो सब जो चीजें थी वो अब देखने में आ रही थी। वो तो आध्यात्मिक थी, भौतिक जगत में देखने में नहीं आ रही थी। बभूव तेन एव च वामनो वटु। तब वो छोटा वामन देव बटु बन गया। बटु कहते छोटे को। संपशो आदिव्य गति यथा नट। जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार अपने आप को बदल दे, ऐसे भगवान ने बदल दिया। और तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमान महर्षि। वो सुंदर ब्राह्मण को देख के महर्षि आनंद में विभोर हो गए। कर्माणि कार्याम आयु। और फिर प्रजापति ने जो संस्कार करने होते हैं बाल के जन्म के समय, उन्होंने, कश्यप ने क्या, उनके सामने उन्होंने सब संस्कार किए। कर्माणि कार्यम आयु, संस्कार कर दिए। और तब क्या हुआ? संस्कार करे तो जनोई संस्कार कैसे हो? बड़ा ब्राह्मण हो गया, इनका संस्कार तो अभी छोटा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? तो किसने जनेऊ दिया? अब जो जो देवता ने जो उपहार दिया, एक बात याद रखना, पृथु महाराज अयोनिज है, माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो वेण के हाथों के सीधे हाथ से पृथु और उल्टे हाथ से अर्ची पैदा हुई है। ये लक्ष्मी नारायण है। और जो उस वक्त देवताओं ने क्या क्या उनको उपहार दिए जो राजा को देने चाहिए। अब यहाँ ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के उपहार दिए जा रहे हैं, तो उपहार देख देख के देना चाहिए, किसको कौन सा उपहार देना चाहिए। तस्य उपनयन्यमानस्य स्वैत्रम स्वैता ब्रूवीत। यज्ञोपवीत समय गायत्री मंत्र साक्षात सूर्य देव ने दिया। वामन देव को यज्ञोपवीत, उपनयन कहते हैं। उप का मतलब ऊपर, खींचना, किसी को संसार से ऊपर उठा के भगवान के निकट लाना, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। इसका मतलब अब वेद पढ़ेगा, अब गीता भागवत पढ़ेगा, अब भगवान के निकट आएगा तो उपनयन संस्कार कहते हैं उसको। इसको जनेऊ संस्कार कहते हैं हमारे पास। उपनयन संस्कार वामन देव का सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करके किया। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम। और जो जनेऊ खुद स्वयं था वो देव गुरु बृहस्पति ने दिया। बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। ब्रह्मचारी को कमर में बांधने के लिए मेखला होती है, वो कुछ घास की बनी हुई रस्सी होती है, वो इनके पिता कश्यप ने दिया। ददाओ कृष्णांजनम भूमि। पृथ्वी माता ने मृग छाल, काली मृग चर्म दिया आसन के लिए। दंडन सोमो वनस्पति। वनस्पतियों का राजा जो चंद्रमा है, उन्होंने क्या दिया? दंड दिया उनको, ब्राह्मण के हाथ में डंडा दिया। कौपनाउच्छादनम माता। माता ने उनको कोपन का वस्त्र दिया। अंग ढकने का जो कोपन वस्त्र है ब्रह्मचारी को पहनने का दिया।
दयोस छत्रम जगतपते, भगवान जगतपति ने उनको छाता दिया, वो छाता ऊपर लेके जाएंगे। दयोस छत्रम जगतपते, भगवान ने छाता दिया। कमंडोल वेद गर्भा, वेद गर्भ ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने करमंडल दिया। एक साधु के हाथ में करमंडल होना चाहिए। कर का मतलब हाथ, उसके अंदर जो हाथ में हो बर्तन उसको करमंडल कहते हैं, जिसके अंदर पानी आदि लेते हैं साधु। करमंडलम वेद गर्भा कुशाम सप्त ऋष्य ददहो, और कुश का घास 7 ऋषियों ने दिया। अक्षमाला महाराज सरस्वती, वो माला जो कभी मुरझाए नहीं, अक्षमाला, सरस्वती ने बहुत सुंदर माला दी। अक्षमाला सरस्वती अव्ययात्मना, और फिर क्या दिया? तस्मादिति उपनीयत्या यक्षराट पात्रिकम ददात। यक्षरा, और वामन देव को जब ये जनेऊ संस्कार हो गया तो कुबेर ने, यक्षों के राजा ने, यक्षराट ने उनको भिक्षा मांगने का पात्र दिया। कुबेर ने क्या दिया? रक्षराट पात्रिकम मदात भिक्षाम भगवती साक्षात। धन, धन के देवता कुबेर ने भीख मांगने का पात्र दिया, और उसके अंदर भीख पहले किसने डाली? भिक्षाम भगवती साक्षात, साक्षात गौरी ने उसके अंदर भिक्षा डाली, उमा ने। उमालाद अंबिका सती, अंबिका सती, उसने पहली भिक्षा दी वामन देव को। स ब्रह्म वर्चसे नैवं सभाम समावितो वटो ब्रह्म ऋषि गण सांजुष्टाम अत्यारोचत मारिषा। बस ये सब सामान लेकर वामन देव यहां से रवाने हुए और जा रहे हैं भृगु कच्छ में, भरूच में, नर्मदा के तट पे, जहां 99 यज्ञ बलि महाराज के पूरे हो चुके हैं और स्वयं यज्ञ की तैयारी हो रही है। अब इंद्र के लिए वह बलि महाराज जो है वो योग्य हो रहे हैं, और तब वहां जाए। अब ये महाराज वामन देव चमक रहे हैं, सब देवता देख के आश्चर्यचकित हो गए। अब यहां से वो लिखा है, ब्रह्मचारी वामन देव ने ब्राह्मण का कार्य किया, यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, और बलि महाराज के अश्वमेध यज्ञ के वहां जा रहे हैं। भारेण गाम समन्वयम पदे पदे, और वहां जब जा रहे हैं तो धरती के ऊपर भगवान है तो छोटे, लेकिन पांव का भार बहुत भारी पड़ा है। उस तरफ जाने लगे, धरती कांप रही थी। बलि महाराज क्यों कांप रही थी? भगवान मांगने जा रहे हैं। तो अब वहां जाके वामन देव का कैसे सम्मान होगा, बलि महाराज से क्या वार्ता होगी, और फिर भगवान कैसे छल करेंगे बलि महाराज को शरणागति का, ये कुछ श्लोकों का कल पाठ करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। वैसे सामान्य रूप से कथा कहनी है तो अभी कह सकते हैं, 5-10 मिनट में पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका रसास्वादन कल करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। वी थैंक, बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु जी का। भक्तों का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, महाराज ने बताया वो श्रीवत्स का चिन्ह, वो क्या होता है प्रभु जी? वो लक्ष्मी का निशान होता है। सुनहरी बालों का एक छोटा सा झुकटा, भगवान के एक छोटा सा निशान, सुनहरी बाल भगवान की छाती के ऊपर वाम भाग में होते हैं,
उसको श्री वत्स चिन्ह कहते हैं। श्री का मतलब लक्ष्मी का चिन्ह कहते हैं उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे इसमें कृष्णा, कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, तो हरे कृष्णा। मेरा जिज्ञासा था, जो ब्राह्मणों को भोजन करना है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो आजकल जो इस्कॉन में जो ब्राह्मण है सिर्फ के उसी को कराना है, नहीं तो पहले से जो ब्राह्मण है उसी को कराना है? ब्राह्मण गुण से होते हैं, जिसमें ब्राह्मण के गुण हैं उसको कराना चाहिए। हरिदास ठाकुर का जन्म तो नहीं हुआ था ब्राह्मण में, लेकिन अद्वैत आचार्य ने उसको श्राद्ध का भोजन हरिदास ठाकुर को कराया था। तो जिसमें आपको ब्राह्मण के गुण दिखे, जो वेद पाठ करता, जो गीता भागवत का पाठ करता हो, जिसका सात्विक वृत्ति सतोगुण में स्थित हो, शम दम जिसमें ये लक्षण हो, उसको भोजन कराना चाहिए। हाँ, जिसमें कम से कम जो विधि विधान से जीता हो ना, ब्राह्मण का आचरण तो हो उसका, उसको कराना चाहिए। और जो पहले से जो ब्राह्मण है, जैसे गांव में बहुत सारे ब्राह्मण है, उनका नहीं, एक उनका भी आदर करना चाहिए। नहीं। कुल अपने अपने परिवार में कुछ कुल ब्राह्मण होते हैं, उनको भोजन, यहाँ तो भोजन लिखा है कि कोई भी हो, शूद्र हो क्या चंडाल हो, उसको भी कराना चाहिए। वो तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उनको आदर के साथ भोजन जरूर कराना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ प्रभु। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कराना चाहिए, उनको आदर देना। क्योंकि प्रसाद वितरण में तो बिल्कुल भेदभाव करना ही नहीं है सबको। और वो जो ब्राह्मण है, वैसे भी कुल में ब्राह्मण के जन्म मिला है तो कोई अच्छे कर्म होंगे तब मिला है ना। अब वो नहीं कर पा रहा है तो ये उसका दुर्भाग्य है, लेकिन उसको जन्म मिला है, ये तो सौभाग्य था ना। तो उसको प्रसाद खिलाना तो चाहिए कुछ। और हमारे ब्राह्मण हैं, उनको तो बुला खिला सकते हैं, लेकिन उनको भी बुलाना चाहिए। हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभुपा जी का हम तिरुभाव तिथि में, प्रभुपा जी के तिरुभाव तिथि में हम सारे साधुओं को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जो ब्राह्मण हैं ब्रज के उनको भी बुला के खिलाते हैं। प्रभुपा जी के तिरुभाव के समय सारे ब्रज के ब्राह्मणों को खिलाया था। तो सब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उनको भी बुला के खिलाना चाहिए। वैसे हम तो यजमान हो जाते हैं, तो हम चाहे भक्त है, ब्राह्मण है, फिर भी दूसरों को खिलाने के बाद, आदित्य अभी भगवान की माता है, फिर भी सब ब्राह्मणों को खिला के फिर खाती है, सबको खिला के फिर खाती है, तो मर्यादा होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, ये जो पायो व्रत का ये कौन सा श्लोक से स्टार्ट होता है? पायोव्रत पूरा अध्याय है एक। पायोव्रत हमने भागवत देखा था 22 श्लोक से लेकर 62 श्लोक तक, 41 श्लोक का ये पूरा पायोव्रत का विधि विधान है। ये मैं समझता हूँ 16वें अध्याय में है, 16वें अध्याय में शायद। देख ले, मेरा ख्याल में हाँ जी, या 16 अध्याय में। माता जी को ही करना है ये व्रत? पुरुष कोई भी होगा। कश्यप खुद ने किया था, कश्यप ने खुद ने किया था, कश्यप माता जी नहीं है। हाँ, हरि बोल। कोई भी कर सकता है। दूध पियो, लेकिन गाय का दूध पीना, घर में बंधी हुई हो। थैली वाला दूध पी के पायोव्रत नहीं होगा। हम गए थे एक बार, कहाँ अपने जो है 4 धाम में, रामेश्वर में, बोला अभिषेक कराना है। महाराज ने कहा अभिषेक गाय का दूध नहीं है, थैली के दूध से अभिषेक कराओ, नहीं कराओ कोई फल तो मिलने वाला है नहीं। तब तो थैलियों के दूध से अभिषेक होता है। गाय का दूध हो तो बात करो, और गाय भी देसी हो तो फिर उसको पियो तो पयोव्रत का फल मिलेगा। हरे कृष्णा। पहले गाय घर में बांधना, फिर पयोव्रत करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कोई प्रश्न तो हाँ जी, बोलिए प्रभु। एक प्रश्न है। आपने कहा बहुत अच्छा लगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, वो प्रजापति लोग टोटल कितना होते हैं प्रभु जी? प्रजापति की कोई गिनती नहीं है। हर ब्रह्मा के समय में प्रजा को उत्पन्न करने के लिए ये जो सप्तऋषि है, ये सब प्रजापति हैं।
इन सब का विवाह होता है, ये प्रजा को उत्पन्न कर। कश्यप सबसे बड़ा प्रजापति है, दक्ष प्रजापति था, अत्रि प्रजापति, ये सब प्रजापति हैं। प्रजापति का वैसे सबसे बड़ा पहला प्रजापति है ब्रह्मा स्वयं, और सबसे बड़ा असली प्रजापति है भगवान। तो प्रजापति का मतलब है जो संतान उत्पन्न करे, प्रजा को उत्पन्न करने वाला। कल हमारा पूर्ण आहुति का दिन है। कल हमने वामन देव का अवतार आज हो गया। कल वामन देव और बलि महाराज के बीच में बातचीत, और फिर अंतिम अध्याय एक रहेगा, वो उस अध्याय को पूर्ण आहुति कल भगवान करेगा, हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर भी हम श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। हमने सोचा ऐसे कथा करने से अच्छा है कि श्लोकों का रसास्वादन कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर कथा करने के लिए। मेरा एक प्रश्न है, आपने कथा के बीच में बोला था कि बड़ों का स्वागत करने के लिए हम उठते हैं तो हमारे प्राण बच जाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है प्रभु? कहते हैं कि प्राण बचने का मतलब है अगर बड़े का आदर नहीं करेंगे तो आयु, यश, बल, विद्या नाश होती है। तो आयु भी चली जाती है, विद्या भी जाती है, बल भी जाता है, श्रेय भी जाता है। इसलिए बड़ों का सम्मान करने के लिए उठना चाहिए। कोई भी बड़ा आए तो आदर से उठना चाहिए, सम्मान यथाउचित करना चाहिए। तो ये शास्त्र का विधान है। यश आयु बल, यश आयु बल विद्या और श्री, ये नाश होता है अगर बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो। और भगवान के मंदिर में तो पर्दा खोलने के समय उठना ही चाहिए। कंस भी भगवान कृष्ण जब मंच के ऊपर चढ़े तो कंस भी उठ के खड़ा हो गया, चाहे लड़ने के लिए, लेकिन भगवान का आदर तो उसने भी कर दिया। प्रभु जी, आपने कथा के बीच में दो चीजें और बताई कि अग्नि और अग्नि और ब्राह्मण विष्णु जी के मुख हैं, और दूसरा पविव्रत पूजा के बारे में बताया। तो प्रभुपाद जी का क्या आदेश था इस विषय में कि हमको, जैसे हम छोटे थे तो हम देखते थे हमारी दादी जी भोग बनाने के बाद में अग्नि के जो चूल्हा था उसके ऊपर थोड़ा सा रोटी, सब्जी और जल देती थी, है ना। तो अभी हम इस्कॉन में तो ऐसा देखते नहीं है। तो प्रभुपाद जी का क्या आदेश था इस विषय में कि हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ऐसे पयोव्रत के बारे में आपने बताया कि गाय का घर में हो तो उसका दूध से व्रत कर सकते हैं। तो सपोज किसके घर में गाय है तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ऐसा व्रत हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ये व्रत से पहले जो कश्यप जी ने, पहले तो आपका पहला प्रश्न है कि जहां ब्राह्मण को भोजन और अग्नि को भोजन वहां कराया जाता है जहां सीधा भगवान को भोग नहीं लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ सीधा भगवान को भोग लगता है तो फिर अग्नि ब्राह्मण सब संतुष्ट, उनका प्रसाद उनको देने से वो संतुष्ट हो जाते हैं। अग्नि भी एक देव है। अग्नि का भोजन का मतलब है यज्ञ करना। जैसे हम दीक्षा आदि में या भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में तो अग्निहोत्र करते ही हैं, तब तो उसके अंदर भोग सब विधि विधान होता है। तो वो विधि विधान जो है अग्निहोत्र का, वैसे अभी हमारे पास प्रचलित नहीं है इस कान में अग्निहोत्र का कि रोज हम अग्नि का करें। हम तो भगवान का रोज दीप आदि करके और पूजा कर लेते हैं, यही पूरा है। पयोव्रत जो है असल में एक दृष्टि से देखा जाए तो कामना की पूर्ति के लिए है। तो वही व्रत भगवान की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। मानो कि उन दिनों में हम दूध के ऊपर रह जाएं और भगवान की ऐसे पूजा अच्छी तरह से करें और हमारा इच्छा हो कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का अवतार हो, तो करने में कोई आपत्ति नहीं। परंतु प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था कि हम प्रचार के, हमारा काम है प्रचार। तो प्रचार करने वाले ऐसे 12 दिन के लिए एक दिन बैठ जाएं, एक जगह बैठ जाएं, तो प्रचार कैसे होगा? तो प्रचारकों के लिए ये सब नियम जो है ये उनके लिए, भाई कोई कर ले तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। भागवत में लिखा है तो ये एक अच्छा सा व्रत है अपने आप में। कम से कम 12 दिन आदमी कोई दूधाहारी बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ पूजा की विधि भी लिखी हुई है। भगवान नारायण कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी। और मांगना क्या है? कृष्ण का प्रेम मांगना है, तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसे गोपाल मंत्र का हमारे आचार्य गण गोपाल मंत्र जो 18 अक्षर का है उसका पूरा पुरस्चरण करते थे।
3-3 महीने बैठ के उनका जप करते थे। ऐसा नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 64 माला क्या तो इतने माला करते थे कई दिन बैठ के। तो भगवान का नाम जपना और एक टाइम खाना, तो ये करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रचार का हम जो कार्य करेंगे तब इतने दिन हम एक जगह बैठ जाएं, ये ठीक नहीं। ठीक है प्रभु। प्रायोरिटी प्रचार को होनी चाहिए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा है कि बलि महाराज शुक्राचार्य के पहले भी शिष्य, बलि महाराज शुक्राचार्य के पहले भी शिष्य थे, और उस समय इंद्र को भगवान भेजते हैं संधि करने के लिए, समुद्र मंथन की लीला हम लोग देखते हैं। उसके पहले इंद्र बृहस्पति जी का अपमान कर देते हैं तो उनका श्री चला जाता है, वो भी हम देखते हैं। लेकिन बलि महाराज ने ऐसा क्या विशेष किया, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब उनको गुरु कृपा प्राप्त हुई और उस गुरु कृपा से वो अजय हो गए, और भगवान स्वयं कहते हैं, जैसा हमने कथा में बताया अदिति माता को, कि इस समय जो भृगुवंशियों के शिष्य उन्होंने शरण ली हुई है, उनको हम लोग जीतना नहीं चाहिए, भी उनको नहीं ले सकते। तो डिफरेंस क्या है प्रभु दोनों, क्योंकि गुरु तो पहले से उनके हैं, शुक्राचार्य पहले भी गुरु थे, बाद में भी गुरु हैं, तो ऐसा विशेष क्या हुआ है जो सबके लिए जानकारी के लिए अच्छा रहेगा कि गुरु को हम लोग किस प्रकार भाव से धारण करें? सिर्फ एक गुरु शब्द नहीं लिखा है कि ब्राह्मणों से रक्षित है, शब्द लिखा है ब्राह्मणों से गोपतृत्वे विप्रे, विप्रों से रक्षित है। जी प्रभु। विप्रों से रक्षित है का मतलब भृगुवंशी ब्राह्मण जितने थे उन्होंने बलि महाराज से विश्वजीत यज्ञ कराया। विश्वजीत यज्ञ से वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसका मतलब ब्राह्मणों ने आहुति डाली होगी तो भगवान विष्णु को ही डाली होगी ना, यज्ञपति तो भगवान विष्णु है। तो विश्वजीत यज्ञ के अंदर से अगर रथ निकला तो भी भगवान विष्णु ने ही तो दिया। तो इसका मतलब भगवान एक तरफ से एक वरदान बलि को दिया हुआ है, उस वरदान का निषेध दोबारा जाके मार के कैसे करें? वही भगवान का ही दिया हुआ वरदान है ना। यज्ञ ब्राह्मण करेगा तो भगवान ही प्रसन्न होगा। यज्ञपति तो भगवान है, दो तो नहीं हो सकते। शुक्राचार्य के लिए दूसरा भगवान तो नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जब कोई मेरी पूजा विधि विधान से ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में शास्त्र के अनुसार करता है तो मैं उनको अन्याय नहीं कर सकता उनके साथ। मैं अब छोटा भाई बन जाऊंगा इंद्र का, तो फिर मैं अपने भाई के लिए जाके कुछ मांगूंगा। वैसे भगवान मांगने के लिए गए, लड़ने के लिए नहीं गए, और मांगने वाले को छोटा बनना पड़ता है। भगवान छोटे बन गए। और बलि महाराज कहेगा शुक्राचार्य को कि आप कहते हो ये विष्णु है, भले विष्णु हो, लेकिन आज मेरे पास मांगने आया है, इसलिए मैं इसको जरूर दूंगा। और प्रहलाद महाराज कहेंगे कि भगवान हम असुर आपकी संपत्ति को अपना मानने की मूर्खता करते हैं, अच्छा हुआ आपने सब कुछ ले लिया, हमारा अहंकार खत्म हो गया। और बलि महाराज अहंकार का तो अर्पण कर रहे हैं। बलि महाराज क्या कर रहे हैं? अपने अहम भाव को तो ही अपरार्पण करने तो वो है आत्मनिवेदन अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तो बलि महाराज 12 महाजनों में एक महाजन है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। हरे कृष्ण। ऋषिकेश जी। कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हम भागवत कथा में आता है कि देवकी माता ने उनके प्रीवियस जन्मों में कई हजारों सालों तक तपस्या की, बाद में भगवान उनके घर उनके सामने प्रकट हुए। और यहाँ पे अदिति माता ने सिर्फ 12 दिन पयोव्रत किया तो भगवान प्रकट हो गए। तो क्या पयोव्रत हजारों सालों की तपस्या से भी उत्तम है प्रभु? हाउ डू यू अंडरस्टैंड प्रभु? वही देव की आदिति बनी है, उसकी पहले वाली तपस्या उसके साथ है, तब 12 दिन में ये काम हो गया। आप सुनेंगे कि भगवान को जब देवकी और वसुदेव ने कहा कि हमारे, जब वो प्रश्नी वो थे तो भगवान को कहा मेरे जैसा पुत्र हो, तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा और कोई होता नहीं है।
अब मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। पहले कृष्णी गर्भा बना, फिर आदित्य और कश्यप के बाद वामन देव बना, और अब वासुदेव देवकी आपके यहाँ कृष्ण के रूप में आया हूँ, वसुदेव कृष्ण। तो वही देवकी ये आज आदित्य बनी है। तो उसकी पहले वाली तपस्या थी, तब 12 दिन में ये काम हो गया। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि ये 3 बार भगवान अब कहते हैं, जब कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तब कहा कि आप ही थे, आपने ही तो मेरे लिए पुत्र के रूप में प्रार्थना की थी। आप पहले सुतपा और पुरुषणी थे, तब मैं पुरुषणी गर्भा होके आया, फिर आप आदित्य और कश्यप थे, मैं वामन देव होकर आया, और अब आपके यहाँ वसुदेव कृष्ण होके आया हूँ देव, तब ये कहा था। तो ये तो वही उनका ऐसा प्रश्न पूछा था कि 6 महीने में ध्रुव महाराज को भगवान कैसे मिल गए? तो भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए, उनको ले जाके एक पर्वत, सफेद पर्वत समुद्र के बीच में दिखाया। बोला ये तो बड़ा सफेद पर्वत है, कहाँ से आया? बोला ये ध्रुव महाराज के हड्डियों का पर्वत है, इतने साल तपस्या की है, तब 6 महीने में भगवान मिले। तो ऐसे है, कोई आदमी कभी कभी ताला नहीं खुलता है ना, एक आदमी 100 हथौड़े मार के जाता है, खुला नहीं, और एक आदमी आया, उसने हाथ से खींचा और खुल गया, तो पहले के 100 हथौड़ों से टूटा हुआ था। तो ये है कि हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए कभी हम कहते हैं गुरु महाराज को 56 भोग लग रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य लग के देखते थे इतनी बड़ी पूजा क्यों हो रहा है। लेकिन पहले उसने क्या तपस्या की है वो किसी ने देखी नहीं है। उसका जो पहला जीवन का तपस्या है उसको कोई देखी नहीं है, वो सिर्फ बाद वाली को देख के आश्चर्य कर रहे हैं। पहले कितना परिश्रम उन्होंने किया है वो किसी ने देखा हो तो पता लगे ना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। सॉरी प्रभु, आपने जो ध्रुव महाराज के बारे में बताया 6 महीने का, उसको दोबारा रिपीट करेंगे? मैंने मिस कर दिया, उसको समझ नहीं पाया। वह ऐसे कथा आती है कि किसी ने पूछा कि ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान कैसे मिल गए? तो भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए और उन सबको जो आपस में चर्चा कर रहे थे उनको ले गए और एक समुद्र दिखाया, उसके अंदर एक सफेद पहाड़ दिखाया। सब आश्चर्यचकित हुए, सबने पूछा ये क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा ये ध्रुव महाराज के कई जन्मों की तपस्या के बाद हड्डियां हैं, इतने सालों की तपस्या ध्रुव महाराज कर चुके थे, तब इनको 6 महीने में अभी तैयार था तो मिल गया। फिर वहां से वो ब्राह्मण अदृश्य हो गया। ऐसी कथा पुराणों में आती है, हमारे कवि श्रवण में आई है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, और किसी भक्त को कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। या रस्सा बोलिए। नहीं, वो म्यूट हो गया था वापस से इन्होंने। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ध्रुव महाराज को इतने जन्मों की तपस्या लगी है, देवकी माता को इतनी जन्मों की तपस्या लगी है, और जब ऐसा हुआ है तो हम जो कलयुग के जीव है प्रभु जी, और हम जो यहाँ पर जो भी त्रुटि के साथ जो भक्ति कर रहे हैं, तो हालांकि हमको प्रभुपाद जी की वाणी पे विश्वास है पूर्ण रूप से, और हम ये भी सुने हैं कि लोग कहते हैं कि जो महाप्रभु के मिशन में आ गया उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस एक जन्म के अंदर हम लोग क्या करें और किस प्रकार से, हालांकि ध्येय पूरा है, पर हमारी क्या योग्यता या क्या गारंटी है कि हम भगवत धाम वापस पहुंच जाएंगे? तो इसके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आपने खुद ने कह दिया कि महाप्रभु के आंदोलन में, संकीर्तन आंदोलन में आना, प्रभुपाद के इस्कान में आना, ये कई जन्मों का सुकृति है, तब आया है। सब नहीं आ सकते हैं, जो आ गए हैं वो निश्चित रूप से एडमिशन हो गई है। एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है, फिर पास तो एक दिन होना ही है, वो हो जाएंगे। एडमिशन होना मुश्किल होता है, तो एडमिशन हो गया है तो अब निश्चित रूप से हमारे को भगवत चरणों की प्रीति प्राप्त होगी। तो कोई जल्दी हो या देर से हो, लेकिन मिलेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। बस एक शर्त है कि कभी हरे कृष्ण जपना छोड़ो नहीं, कृष्ण कभी नहीं छोड़ेगा। एक ही काम पक्का रखो, जाओ हरे कृष्ण मंत्र जरूर, कभी छोड़ना मत जपना, तो निश्चित समझो कि उद्धार हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधा चरण, मेरी वाइफ का एक प्रश्न है कि आपने कथा के बीच में बताया कि भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश किए सबके सामने,
तो प्रश्न ये है कि वह तो ऑलरेडी सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो वो अंदर से अंदर जाके रक्षा कर सकते थे, बाहर से दोबारा प्रवेश क्यों किया उन्होंने? नहीं, बाहर से प्रवेश तो नहीं किया, बाहर तो ऐसे ही कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे, लेकिन अंदर से ही प्रवेश किया। प्रवेश तो अंदर हृदय से ही किया, बाहर से नहीं किया। बाहर तो रथ के ऊपर विराजमान होके अपने सुदर्शन चक्र से 5 पांडवों की रक्षा कर रहे थे, परंतु हृदय से अंदर जाके उत्तरा के गर्भ में इतने आतुर हो गए कि गदा को तेज चलाया जैसे चक्कर चल रहा है। अब गदा है कि चक्कर है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, इतने भगवान अधीर हो गए, तो उत्तरा के गर्भ में चले गए। तो उत्तरायण उसको इसलिए, उत्तरायण का मतलब कृष्ण जो उत्तरा के गर्भ में चला गया परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो चला गया। नारायण का मतलब जो समुद्र में शयन करे। उत्तरा यस्य अयनम स उत्तरायण, जैसे नारायण है ना, नर यस्य अयनम स नारायण, जो समुद्र में नार का मतलब पानी में जो सोए वो नारायण, उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश किया वो उत्तरायण कृष्ण का एक नाम हो जाएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू। भीष्म पितामह कृष्ण का विशेष रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो बाहर से तो नहीं अंदर से ही गए, लेकिन गए साक्षात रूप में। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा, कृष्ण कृपा थैंक यू प्रभु, प्रभु हरे हरि कृष्णा। बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप कल दोबारा सत्र में पधारिए, कल पूर्णाहुति होगी, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि टाइम से पधारिए और हम कथा का दोबारा आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण, जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च सार्वभौम प्रभु की जय, समस्त भक्त की जय। जय। हरि हरि।